Hi everyone, Sadiq this side. Welcome to 10x Backend LLD series. इस वीडियो में we'll try to design a rate limiter. तो सबसे पहले let's just understand what is a rate limiter and what are the requirements for us to do in this LLD exercise. So let's just jump into that. So if you can see my screen, let's just look over the requirements. सबसे पहले ये है कि we need to allow supporting different types of rate limiting algorithms like token bucket, sliding window lock. बहुत सारे there are various strategies to basically there are various algorithms. We'll try to implement the token bucket in this video. Or the main idea behind this is that our code should be able to support different types of and strategy and should not be hard coded to just support a single one. So that is the main idea here कि हमको इसको extensible बनाना है. I think the second point is exactly the same कि different swapping of algorithm should be allowed कि हम easily switch कर सके from one algorithm to a different algorithm. Okay, then it should be thread safe. Yes, क्योंकि ये high concurrency environment में भी rate limiter should work consistent. So it's an important requirement. And the last one is optional. It's about creating a builder API to for the rate limiter ताकि rate limiter का object easily हम construct कर सके. But this is the optional one. If you have time, we'll probably spend some time there. But yeah, सबसे पहले हम लोग start करते हैं कि rate limiter क्या करता है and we'll try to understand token bucket and then we'll move ahead with the code. तो रेट लिमिटर का काम क्या है? रेट लिमिटर का काम है इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक दैट कम्स टू अ सिस्टम. ठीक है, एक पर्टिकुलर सिस्टम में या एक पर्टिकुलर आपका जो सर्वर है, बैकएंड सर्वर है, फ्रंट एंड सर्वर है, वो उसको कितनी रिक्वेस्ट सर्विस करे, वो कितना ट्रैफिक कंज्यूम करे और उनका रिस्पॉन्स दे, इसको कंट्रोल करता है रेट लिमिटर. नाउ द क्वेश्चन इज वी हैव क्रिएटेड एप्लीकेशन सो दैट पीपल कैन यूज इट, सो व्हाई डू वी नीड टू कंट्रोल इट? हम क्यों चाहते हैं कि हम ट्रैफिक इनकमिंग ट्रैफिक कंट्रोल करें? इंस्टेड वी विल ऑलवेज वांट अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, राइट? द मोर ट्रैफिक द बेटर. बट ऐसा नहीं है, बिकॉज when the servers are created, when these are deployed, there's a specific configuration, right? Certain amount of memory, certain amount of CPU that is there, और वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को सपोर्ट करने के लिए इन अ गुड वे, इन एन एफिशिएंट वे कन्फिगर किया जाता है. फॉर एग्जांपल, जो सब सर्वर्स होते हैं उसका लेट्स उनके पास 16 कोर है और 1 GB हीप है, हाइपोथेटिकल है, और उसके हिसाब से इतना है कि वी आर एबल टू सपोर्ट 100 रिक्वेस्ट पर सेकंड. तो अगर 100 रिक्वेस्ट एक साथ आए या 100 यूजर्स एक बार में रिक्वेस्ट कर रहे हो हमारी कुछ एपीआईज, तो वी आर गुड टू सर्विस देम. हमारे पास इतना रिसोर्सेज है कि हम सर्विस कर सकते. बट सडनली लेट्स से 1000 रिक्वेस्ट आ जाए, then what will happen? तो if we don't put these guardrails, right, अगर हम ये इनकमिंग ट्रैफिक को कंप्लीट नहीं करेंगे तो देन हमारा सिस्टम है it will choke, it will overload and there will be performance degradation. In fact, a lot of APIs will simply time out क्योंकि उनको CPU का टाइम मिलेगा ही नहीं. So it's very very important. रेट लिमिटर बहुत इंपॉर्टेंट है इनकमिंग ट्रैफिक अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए. लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द फ्लो. हम लोग एक बार फ्लो देख लेते हैं. सो okay, rate limiter, right? तो ये है हमारा, imagine this is our server, या इसको आप एप्लीकेशन बोल दो. ओके, एंड देन वी हैव lots of users who are sending requests, right? Requests. So हमारा जो सर्वर है it is good to support 100 requests per second, correct? तो अगर यहाँ पे if the rate becomes 1000, 2000 और even in fact 500, right, अगर एक सेकंड में पर्टिकुलर टाइम पे 500 रिक्वेस्ट आ जाए, then most likely what will happen, your server, it will become so busy to fulfill the APIs, yeah, fulfill the requests, that it will choke. And what does choke mean? That latency will increase. Latency बहुत बढ़ जाएगी. In fact, a lot of APIs will time out क्योंकि उनको कभी वो सर्वर के पास पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपका सर्वर इतना बिजी रहेगा. एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पॉड्स है वो किल हो जाएं. सो व्हाट डज द रेट लिमिटर डू? रेट लिमिटर इज अ कंपोनेंट जो रिक्वेस्ट और आपके बैकएंड सर्विस के बीच में है, राइट? तो ये है अपना रेट लिमिटर. सो व्हाट दिस विल डू, कोई भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आएगी, so this will decide whether to allow or deny.
समझे क्या है? वो चेक करेगा कि अगर जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको मैं सर्वर के पास भेजूं, क्या सर्वर के पास कितनी कैपेसिटी है कि उसको सर्विस कर सके, या क्या कर दूं, ड्रॉप कर दूं। और जनरली जब भी कोई भी रिक्वेस्ट रेट लिमिट होती है तो द स्टेटस कोड, द एचटीटीपी स्टेटस कोड दैट वी गेट इज 429। 429 का मतलब होता है टू मेनी रिक्वेस्ट। बहुत ही सिंपल फ्लो है, राइट? इट्स लाइक अ परमिशन, इट इज समथिंग दैट गिव्स परमिशन टू रिक्वेस्ट कि ओके यू आर अलाउड टू गो टू द सर्वर। अगर वो देखेगा कि नहीं सर्वर ऑलरेडी बिजी है, हमारे कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम इस रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं कर सकते, इट विल सिंपली ड्रॉप द रिक्वेस्ट एंड द रिक्वेस्ट विल नेवर गो टू द सर्वर। इन दिस वे आवर सर्विस इज प्रोटेक्टेड। सो ये उसका यूसेज है। अगर जस्ट इफ यू वांट टू रिमेंबर और क्या उसके यूसेज है, तो सबसे पहला है आपका कि प्रिवेंट्स सर्वर एग्जॉशन, और क्या करता है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डीडॉस अटैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीडॉस अटैक का मतलब होता है डिनायल ऑफ सर्विस। तो इसमें क्या होता है, इमेजिन आपका सर्वर है, वो जो आपके एक्चुअल यूजर्स है उनको सपोर्ट करने के लिए एपीआईज हैं एंड एवरीथिंग, राइट? देयर आर सम चेक्स, लॉगिन से, ऑथेंटिकेशन से, ऑथराइजेशन से, एवरीथिंग। बट सम हैकर व्हाट दे विल डू, दे विल ट्राई टू सेंड लैक्स ऑफ रिक्वेस्ट टू योर सर्वर, इवन दो दे आर नॉट valid user, but still you will send, but still they will send, and your server will become so busy to reply to these dummy requests. Let's say the server replies that it's not authorized, please use the correct credentials and what not. इससे क्या हो जाएगा, आपका सर्वर इतना बिजी हो जाएगा to respond to these dummy requests that it will fail to respond टू द एक्चुअल कस्टमर रिक्वेस्ट, और उससे क्या हो जाएगा, आपका सिस्टम अवेलेबल ही नहीं रहेगा, वो सर्विस ही नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ बिजी विद दिस डमी रिक्वेस्ट। सो ये अटैकर्स यूज इट एंड इट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दिस, हम लोग जनरली आईपी लेवल पे रेट लिमिटर लगा देते कि इस आईपी से अगर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है तो सिंपली ब्लॉक दी आईपी, राइट? तो गेटवे लेवल पे भी होता है। सो दीज आर सम ऑफ द यूज केसेस। द अदर यूज केस विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल्सो, कि एट टाइम्स देयर इज ऑल्सो बिजनेस रिक्वायरमेंट। जैसे इमेजिन ओटीपी, अब हम चाहते हैं कि ओटीपी जनरेशन 5 मिनट में यूजर एक ही बार कर पाए, तो ये भी एक तरीके का रेट लिमिट है। कैसा रेट लिमिट? यूजर प्लस एंड पॉइंट का रेट लिमिट है, कि मैं चाहता हूं कि कोई भी यूजर, लेट्स से यूजर एक्स, ओटीपी जनरेशन वाली एपीआई को 5 मिनट में सिर्फ कितने बार कॉल पर है? सिर्फ 1 बार। तो ये भी एक तरीके का रेट लिमिटर है, क्योंकि अगर आप इफ यू ट्राई टू generate OTP again within the window, let's say 5 minutes के अंदर, then it will simply reject and it will say it is already there and try after some time. So this is also a rate limit example. तो ये business requirement भी होता है, use case भी होता है. So these are all the use cases. And you can understand कितना important है, हर जगह use होता है. It's almost इट्स यूज इन एवरी पब्लिक एपीआई, राइट? रेट लिमिटेड होती हैं ये सब, हमेशा जो पब्लिक एपीआई है वो रेट लिमिटेड होती हैं, दिस आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड। अब अब मैं जो अगला जो काम है कि रेट लिमिटेड डिसाइड करता है कि हमको रिक्वेस्ट को अलाउ करना है या नहीं करना। हाउ डज इट डिसाइड्स? सो दिस डिसाइडिंग एल्गोरिथम इज कॉल्ड योर रेट लिमिटिंग स्ट्रेटेजी। और इसके कुछ वेरियस फेमस एल्गोरिथम्स होते हैं, जैसे टोकन बकेट, स्लाइडिंग विंडो लॉग। देयर आर सम हाइब्रिड टेक्निक्स आल्सो, बट हम लोग यहाँ पे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड टोकन बकेट। बहुत ही सिंपल है एंड इट्स वेरी फेमस। यू कैन, जब भी कोई आपसे पूछे तो आप टोकन बकेट इनफैक्ट प्रॉड में भी यूज कर सकते हैं। AWS ऑल्सो यूजेज इट, स्ट्राइप ऑल्सो यूजेज इट फॉर सम ऑफ द API, सो इट्स गुड इनफ, है ना? तो इसको हम लोग सीखते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड टोकन बकेट। I will just take like 5 minutes to help you understand. फिर हम लोग सीधे कोड पे जंप करते हैं, but it's always best to just first understand the flow before jump into the code. So token bucket algorithm. Okay, समझते हैं क्या है। तो टोकन बकेट एल्गोरिथम क्या बोलता है? वेरी वेरी सिंपल। ये बोलता है एक बकेट है, दिस इज अ बकेट, ओके, एंड इट हैज सम टोकन्स। ठीक है, बकेट के पास क्या है? टोकन्स हैं, और उसके पास है एक रिफिल रेट। मतलब क्या है, उसके पास कुछ टोकन्स होंगे और एक रिफिल रेट होगा कि इतने देर में इतने टोकन्स इसमें ऐड होंगे। और ये एल्गोरिथम बोलता है कि अगर किसी बकेट में टोकन्स हैं तो मैं रिक्वेस्ट को अलाउ करूंगा। क्या होता है? इफ टोकन एग्जिस्ट इन बकेट अलाउ एंड कंज्यूम 1 टोकन। क्या करेगा? कोई भी एक रिक्वेस्ट आएगी, it will check whether any token exists or not, some token exists or not. If the number of tokens is greater than 0, you will allow and then decrement the count. आप लोग नंबर ऑफ टोकन्स कम कर देंगे, ठीक है? इमेजिन एक रिक्वेस्ट आती है
and there are 0 tokens, then what will happen? It will drop the request. Let me just highlight, this is important, right? If number of tokens is 0, it will simply drop the request. ठीक है, तो ये पूरा इसका फंडा है. अब लोग वापस से समझते हैं कि ये अब ये रिफिल रेट का क्या काम है. तो हम लोग एक सिनेरियो, एक एग्जांपल लेते हैं. तो इमेजिन, सो विल जस्ट क्रिएट अ स्मॉल टेबल. ठीक है, बहुत सिंपल एक टेबल है, और ये हो जाएगा रिक्वेस्ट. तो ये 1 2 3 4 5, ये है नंबर ऑफ टोकन्स. तो अज्यूम करो कि रिफिल रेट, मतलब हम रिफिल कर ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ रिफिल रेट कितना है, 0 है मान लो, और बकेट में अभी बकेट में कितने 3 टोकन्स हैं. ध्यान से देखना, 3 टोकन्स है. पहली रिक्वेस्ट आई, नंबर ऑफ टोकन्स कितने हैं, 3. अलाउ करना है, यस. अलाउ, यस. इसको कितना हो जाएगा, ये अभी हो जाएगा 2. सेकंड रिक्वेस्ट आई, कितने नंबर ऑफ टोकन्स है, 2 है, ग्रेटर देन 0 है, यस. तो अलाउ करना है, यस. डिक्रीमेंट करो, कितना बचा है, 1 बचा. थर्ड रिक्वेस्ट आई, नंबर ऑफ टोकन्स कितने हैं, अभी भी 1 है, अलाउ हो जाएगा, यस. अब नंबर ऑफ टोकन्स हो गया 0. तो फोर्थ रिक्वेस्ट जब आएगी, इट विल नॉट अलाउ, नो, एंड इट विल ड्रॉप. अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर अब हम इस यहाँ पे रिफिल नहीं करें तो ये तो हमेशा 0 रहेगा. तो दैट मीन्स योर सिस्टम विल सिट आइडल, और कोई भी रिक्वेस्ट आए सभी ड्रॉप हो जाएंगी. सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू हैव अ रिफिल रेट, जो इसको इट एट सम रेट इट विल ट्राई टू रिफिल द वैल्यू, कि हाँ मैं ना 2 टोकन्स ऐड करूंगा इन एवरी 2 सेकेंड्स या इन एवरी 1 सेकेंड लेट्स से. तो ये क्या हो जाएगा, अगर t0 पे 1 टोकन है तो t0 t बराबर 1 पे कितना हो जाएगा, 1 सेकंड पास हो गया, 1 सेकंड में कितने टोकन हट जाएंगे, +2. टोटल हो गया टोकन 3. फिर अगले सेकंड में कितना हो जाएगा, t बराबर 2 में कितना हो जाएगा, 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5. तो अगर ऐसा हुआ तो इससे इसेंशियली हमारा सिस्टम बच कैसे रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ऐसा है तो मान लो 5 घंटे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है, तो नंबर ऑफ टोकन से बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, और फिर एक साथ बहुत सारी रिक्वेस्ट आ जाएंगी, तो देन ऑल्सो योर सिस्टम विल फेल. सो दैट्स वाई देयर इज वन मोर पैरामीटर इन अ बकेट विच इज कॉल्ड एज कैपेसिटी ऑफ bucket, or number of tokens can never pass this value, right? जैसे अगर कैपेसिटी है 100, तो आप कितना भी रिफिल करो वो 100 के पार नहीं होगा. अगर मान लो ऑलरेडी 100 है और उसमें वापस से आप 50 डालने को ट्राई करोगे, इट विल स्टिल रिमेन 100, क्योंकि उसकी कैपेसिटी मैक्स है. एंड हाउ डू वी डिसाइड दिस कैपेसिटी? वी डिसाइड बाय नोइंग आवर मेट्रिक्स. हमारे सिस्टम का क्या मेट्रिक्स है, वो एट अ पॉइंट कितनी रिक्वेस्ट को ईजिली सर्विस कर सकता है. अगर मेरे को पता है कि मेरा सर्वर 50 रिक्वेस्ट ही अच्छे से सर्व कर सकता है इन अ पर्टिकुलर मोमेंट, तो मैं कैपेसिटी कितने रहूंगा, 50, ताकि अगर एक साथ 50 भी आ जाए, लेट्स से एक बार में पूरी 50 रिक्वेस्ट आ जाए, 50 टोकन कंज्यूम हो जाएंगे, लेकिन मेरा सिस्टम सर्विस कर देगा. अगर मैं ये कैपेसिटी 100 कर दूं और मेरा तो सिस्टम सिर्फ 50 ही एक बार में अच्छे से हैंडल कर पाता है, तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक बार में 100 रिक्वेस्ट आ जाए तो हमारा रेट लिमिटर तो अलाउ कर देगा, क्योंकि 100 टोकन्स थे, उसने अलाउ कर दिया, एंड योर सिस्टम विल बी बम्बार्डेड विद 2x ऑफ ट्रैफिक, एंड इससे क्या हो जाएगा, आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगा. सो दिस इज द कंसेप्ट, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइन ट्यून these वैल्यूज, कैपेसिटी एंड refill का rate. Okay, so this is token bucket, very straightforward. Now let's just jump into the code और हम लोग कोड करते हैं. तो let me switch over to the ID now. I hope ये विजिबल है. तो हमारा यूज केस क्या है कि हमको क्या बनाना है, एक रेट लिमिटर बनाना है. ठीक है, सिंपल है. लेट्स क्रिएट अ क्लास, पब्लिक क्लास रेट लिमिटर. सो फार सो गुड. ठीक है, अब बताओ कि इसके अंदर क्या मेथड होगा. तो हम लोगों ने डिस्कस किया रेट लिमिटर सिर्फ क्या करता है, रेट लिमिटर बताता है कि वेदर किसी रिक्वेस्ट को अलाउ करना है या नहीं करना है. करेक्ट. तो सिंपल एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक बूलियन, अलाउ करना है मतलब हाँ या ना उसको बोलना है, तो बूलियन इज अलाउड. ठीक है, वेरी सिंपल. मैं अभी हार्ड कोड कर देता हूं इसको, रिटर्न ट्रू. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द पैरामीटर दैट विल टेक. जैसे हम समझे कैसे हैं, अब यहाँ पे मतलब रिक्वेस्ट को समझे कैसे हैं कि ये रिक्वेस्ट पहले आ चुकी है या नहीं आ चुकी है. तो उसका आंसर बहुत सिंपल है कि हम लोग एक स्ट्रिंग लेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे स्ट्रिंग, 1 सेकेंड, विल से स्ट्रिंग की. ओके, हाँ. अब स्ट्रिंग की हम क्यों, वाई आर वी यूजिंग अ स्ट्रिंग हियर, बिकॉज जो भी आपका ये जो बकेट्स है, राइट, ये बकेट बेसिकली एक की वैल्यू स्टोर में स्टोर होगा. की वैल्यू पेयर का मतलब क्या है कि मान लो
और ये बकेट किस लेवल पे होता है, ऐसा मत समझो कि पूरे सिस्टम की एक बकेट है, ऐसा नहीं है। बकेट का मतलब रहता है एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के अगेंस्ट उसका एक स्टेट, एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो एपीआई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एपीआई का नाम है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ओटीपी जनरेशन, ओटीपी जनरेशन ये एक एपीआई है। तो हमारे हमारा जो स्टोर रहेगा जहाँ पे भी हम लोग ये रखेंगे कि अभी कितने बार कॉल कर सकते हो एंड ऑल दिस थिंग, रिफिल अभी कितने उसमें नंबर ऑफ टोकन्स हैं, वो किसके अगेंस्ट स्टोर करोगे, एक पर्टिकुलर की के अगेंस्ट स्टोर करोगे। तो हमारा की क्या हो जाएगा, लेट से ओटीपी जनरेशन, एक एपीआई का नाम, कोलन इसके अगेंस्ट क्या वैल्यू हम स्टोर करेंगे, इसके अगेंस्ट हम स्टोर करेंगे कितने टोकन्स अवेलेबल है। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी ओटीपी जनरेशन के लिए, हम चेक करेंगे भाई इसके पास टोकन्स हैं भी कि नहीं, अगर है तो अलाउ करेंगे, नहीं होगा तो अलाउ नहीं करेंगे, करेक्ट। ऑल्सो क्योंकि हमारे टोकन बकेट में यू हैव सीन देयर इज ऑल्सो रिफिल रेट। रिफिल रेट का मतलब क्या है कि जैसे अगर रिफिल रेट है कि दो टोकन्स पर सेकेंड, तो आपको इसमें टोकन्स ऐड भी करने हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने टोकन ऐड करने हैं या कितने देर में ऐड करने हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल और स्टोर करेंगे, एक वैल्यू और स्टोर करेंगे विच विल बी अ टाइम स्टैम्प, वो होगा लास्ट रिफिल्ड ऐड। क्यों हमको ये चाहिए, क्योंकि हमको पता चल जाएगा लास्ट टाइम कब रिफिल हुआ था, और किसी भी एट एनी गिवन पॉइंट इफ यू वांट टू नो कि कितने टोकन्स इसमें ऐड होने चाहिए थे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लास्ट रिफिल्ड एट और करंट टाइम का सबट्रैक्शन करेंगे, अमाउंट निकालेंगे कितना टाइम हुआ। लेट्स से हर घंटे हमको 10 टोकन डालने थे और अभी 5 घंटे हो गए, तो 5 घंटे में जितने भी टोकन्स बनने थे विल ट्राई टू ऐड इट। So that's why these are the two things that will maintain in the state, and this is basically called as bucket। यही आपका bucket है जहाँ पे tokens और last refill data है। तो हम किसी भी API को इन अ स्ट्रिंग हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। एंड नॉट जस्ट फॉर API, हम लोग API एज वेल एज यूजर और API के कॉम्बिनेशन को भी स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा यूज केस था कि मैं एक यूजर को पासवर्ड चेंज करने का 2 ही मौका दूंगा इन अ डे, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे ऐसा बना सकता हूँ कि यूजर आईडी अंडरस्कोर एपीआई का नाम, एपीआई का नाम क्या है, पासवर्ड चेंज, एपीआई का नाम क्या है, स्लैश एपीआई स्लैश पासवर्ड चेंज। मैं कैसा की बना सकता हूँ और उसके अगेंस्ट में स्टोर कर लूंगा कि हाँ कितने टोकन्स हैं, लास्ट टाइम कब अपडेट हुआ था। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग मान लो नंबर ऑफ टोकन्स 2 डाल देते हैं, और इसका इसका जो ड्यूरेशन है, राइट, इसका जो कॉन्फिग है वो क्या बोलेगा कि पर डे 2 टोकन ऐड करो। क्यों, क्योंकि हमको एक दिन में 2 ही बार अलाउ करना है, तो इसको 2 ही टोकन रहेगा, और ये टोकन वापस कब रिफिल होगा, अगले दिन, after like 24 hours। So you understand कि using a string we can represent these combinations of use cases। So that's why जो आपका method it is taking a key which is a string type। cool, ये हमारा रेट लिमिटर हो गया। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि देर इज नो लॉजिक रिटर्न, इट विल सिंपली अलाउ ऑल द रिक्वेस्ट। क्या हमारा सिस्टम रेट लिमिटेड हो रहा है, प्रोटेक्टेड हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो हर चीज को अलाउ कर दे रहा है। तो हियर वी नीड टू ऐड लॉजिक फॉर रेट लिमिटिंग। अब ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है, हमको टोकन बकेट इंप्लीमेंट करना है। तो एक तरीका क्या है कि यहाँ पे टोकन बकेट का पूरा लॉजिक हम लोग लिख दें। इश्यूज से ये हो जाएगा कि देन यू आर हार्ड कोडिंग द रेट लिमिटर, राइट, बिकॉज आपने तो, अगर आप मेरे को दूसरा स्लाइडिंग विंडो टेक्निक यूज करना है, तो देन यू हैव टू कम एंड देन यू हैव टू चेंज दिस, और यू हैव टू डू इफ एल्स एंड ऑल दीस थिंग्स। दिस मेक्स इट वेरी हार्ड कपल्ड। और हमको एक्सटेंसिबल सिस्टम बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमको एक्सटेंसिबिलिटी चाहिए रहती है और हार्ड कपलिंग नहीं चाहिए रहती, विल गो टूवर्ड्स व्हाट, विल गो टूवर्ड्स एब्स्ट्रैक्शन। हम एक इंटरफेस बनाएंगे फॉर द रेट लिमिटिंग एल्गोरिथम। अब यहाँ से ध्यान से देखना क्या करूंगा मैं, आई विल क्रिएट एन इंटरफेस, उसका नाम रहेगा रेट लिमिटिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। उसके अंदर एक मेथड रहेगा बूलियन, सेम उसके अंदर भी मैं इज अलाउड एक मेथड बनाता हूँ, और उसके अंदर भी मैं उसको सेम चीज की रिक्वेस्ट की की भेजूंगा, ठीक है। अब क्या है, ये एक स्ट्रेटेजी का इंटरफेस है, इसके कोई भी इंप्लीमेंटेशन हो सकते हैं। टोकन बकेट कैन बी द वन ऑफ द इंप्लीमेंटेशन, स्लाइड विंडो लॉग कैन बी अ डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन, बट रेट लिमिटर को उसके बारे में पता नहीं है। रेट लिमिटर को कुछ नहीं पता कि टोकन बकेट यूज करना है कि या कुछ और यूज करना है। उसको क्या यूज करना है, उसको पता है दैट आई विल ओनली डिपेंड ऑन रेट लिमिटर स्ट्रेटेजी इंटरफेस, रेट लिमिटिंग स्ट्रेटेजी। मैं लिख देता हूं रेट लिमिटिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। एंड यू कैन सी दिस इज नॉट अ कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन, राइट, दिस इज जस्ट एन इंटरफेस। और हम क्या करेंगे, अब रेट लिमिटर का कंस्ट्रक्टर बनाता हूं मैं। आई विल टेक द इनपुट ऑफ स्ट्रेटेजी,
मतलब जो भी स्ट्रेटेजी इसको भेजा जाएगा एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेट लिमिटर वो यूज करेगा। दिस डॉट रेट लिमिट स्ट्रेटेजी इक्वल टू स्ट्रेटेजी, सिंपल। अब यहाँ पे क्या करना है, अब वो क्या करेगा, जो भी रिक्वेस्ट या जो भी की आएगी वो सिंपली डेलीगेट कर देगा स्ट्रेटेजी को। क्या करना पड़ेगा हमको, दिस डॉट रेट लिमिटिंग स्ट्रेटेजी डॉट इज अलाउड, वो इसके मेथड को कॉल कर देगा। Your rate limiter doesn't know if this is token bucket, if this is sliding window, and that is the whole game, right? That is how we are using abstraction, that is how we are making it extensible. और instead of hard coded हम यहाँ पे लिखेंगे return जो भी ये strategy return करे, true या false, we don't know what is the algorithm, nothing. And believe me, your skeleton and in fact the rate limiter code is already done. rate limiter का जो class है वो हमेशा इतना ही दिखेगा, there will not be any change here. कितने भी आप इम्प्लीमेंटेशंस ले आओ, कितने भी आप एल्गोरिथम इंप्लीमेंट कर लो, योर कोर लॉजिक और कोर क्लास विल लुक लाइक दिस ओनली। व्हाई? बिकॉज वी हैव डिजाइंड इट इन अ लूज कपल्ड मैनर। अब हम लोग अब क्या करेंगे, नाउ विल क्रिएट द इम्प्लीमेंटेशन फॉर टोकन बकेट। समझ रहे हो? यहाँ पे हम टोकन बकेट का इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कॉन्क्रीट इंस्टांस बनाएंगे एक टोकन बकेट का, और लेटर व्हेन वी हैव टू क्रिएट आवर रेट लिमिटर हम लोग इंस्टेंशिएट करेंगे बाय पासिंग आवर स्ट्रेटेजी, जो कि एक टोकन बकेट वाली होगी, बट आप कुछ भी भेज सकते हैं जो भी आपका इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, सो नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट दी कोडिंग फॉर टोकन बकेट।